Hello students, we were doing our chapter quadrilaterals. In our previous classes we did types of quadrilaterals and properties of their types like parallelogram, trapezium, rectangle, square. Now and we did some examples that was based on that properties. Now our next example is example number 12 of your book. In a parallelogram MODE is a parallelogram. The bisectors of angle M and angle O meet at Q. Find the measure of angle MQO. It means MOD is a parallelogram. So side ME parallel to side OD, and bisector of angle M and bisector of angle O meet at Q, and we have to find the value of this angle. So students, we know that side ME parallel to side OD. It means angle M and angle O are adjacent angles. So adjacent angles are supplementary in parallelogram. So angle M plus angle O, that is equals to 180 degree, because angle M and angle O are adjacent angles and adjacent angles are supplementary. Adjacent angles. Students, इक्वेशन, ये इक्वेशन है एंगल M प्लस एंगल O इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये इक्वल है. इट मीन्स इस इक्वेशन के हाफ कर दें तो भी ये मस्ट भी इक्वल होगी. एंगल M प्लस एंगल O इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180 डिग्री. हाफ ऑफ एंगल M प्लस हाफ ऑफ एंगल O इक्वल्स टू 90 डिग्री. इस मीन्स हाफ ऑफ एंगल M प्लस हाफ ऑफ एंगल O इक्वल्स टू 90 डिग्री. अब ये एम क्यू एंगल M का बाइसेक्टर है. इट मीन्स ये एंगल M को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. ये पार्ट भी इक्वल है और ये पार्ट भी इक्वल है. एंड ओ क्यू O का बाइसेक्टर है, ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. इट मीन्स हाफ एंगल M का हाफ क्या है? एंगल QMO, एंगल QMO, और एंगल O का हाफ QOM. So sum of angle QMO and angle QOM equals to 90 degree. And now we know that MQO is a triangle. MQO is a triangle. And we know that sum of three angles of a triangle is always equals to 180 degree. So angle QMO plus angle QOM plus angle MQO. These are three angles of the triangle and their sum must be equals to 180 degree. So एंगल QMO प्लस एंगल QOM, इसकी वैल्यू क्या है? 90 डिग्री. फाइंड कर चुके हैं हम फर्स्ट. एंगल MQO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल MQO इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्टली क्या किया कि एंगल M एंड एंगल O आर एडजेसेंट एंगल्स, सो दीज आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. सो एंगल M प्लस एंगल O इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो हाफ ऑफ एंगल M इज M प्लस हाफ ऑफ एंगल O इक्वल्स टू 90 डिग्री. हाफ ऑफ एंगल M इज इक्वल्स टू QMO एंड हाफ ऑफ एंगल O इक्वल्स टू QOM. हाफ ऑफ एंगल M की जगह QMO पुट किया, हाफ ऑफ एंगल O की जगह QOM पुट किया, and that is equals to 90 degree. Now MOQ is a triangle. MQO या MOQ is a triangle, and we know that sum of three angles of a triangle is equals to 180 degree. So angle QMO plus angle QOM plus angle MQO is equals to 180 degree. In this question we have to find the value of angle MQO. So addition of these two angles is equals to 90 degree. From this equation I put the value 90 degree of these two angles. 90 degree plus angle QMO equals to 180 degree. So angle MQO equals to 180 minus 90, that is equals to 90 degree. Now next example is example number 14. RE is a rectangle as shown in figure. Its diagonal meet at O. Find x if OR equals to 2x plus 4 and OT is equals to 3x plus 1. रेक्टेंगल गिवन है, डायगोनल गिवन है. फर्स्टली तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी. रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. इट मीन्स TE इक्वल्स टू RN. फर्स्टली
T equals to Rn by the property that diagonals are equal in rectangle, must be equal to each other. Of rectangle, diagonals equal है, it means half of PE is always equals to half of Rn. ओके, कोई दो चीज़ें इक्वल हैं, कोई दो बुक्स, ये दो मार्कर हो, वो अगर इक्वल हो इट मीन्स उन मार्कर का हाफ हाफ किया जाए तो वो भी इक्वल ही होगा. इट मीन्स हाफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर एन. सो हाफ ऑफ टी, टी ओ या ओ टी प्लस ओ ई. सो क्वेश्चन में गिवन है ओ टी, सो हम ओ टी लेके चलते हैं. हाफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू ओ टी एंड हाफ ऑफ आर एन इक्वल्स टू ओ आर. ओके, सो ओ टी की वैल्यू गिवन है 3x प्लस 1 and OR की वैल्यू गिवन है 2x plus 4. This is a linear equation with one variable and in this equation we have to find the value of variable x. So क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे. 2x माइनस में हो 4 minus 1, x is equals to 3. So value of x is equals to 3 in this question. Okay students, example number 15, that is in the given figure HELP is a parallelogram. HELP, this is a parallelogram. लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर, इट मीन्स इसकी जो लेंथ गिवन है वो सेंटीमीटर में है. गिवन दैट ओ इक्वल्स टू 4 एंड एच एल इज इक्वल्स टू एच एल इज 5 मोर देन पी ई. देन फाइंड ओ एच, इट मीन्स ओ एच की वैल्यू फाइंड करनी है. स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम के डायगनल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो यही होती है कि पैरेललोग्राम के डायगनल्स इक्वल तो नहीं होते लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट करते हैं मतलब जिस पॉइंट पे वो दोनों डायगनल्स इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट उन डायगनल्स को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करता है. इट मीन्स पी ई एक पूरा डायगनल है. सो ओ इसको इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों डायगनल्स का. सो ओ ई इक्वल्स टू ओ पी. सो ओ ई इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. इट मीन्स ओ पी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. ओ ई इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. ओ पी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. डायगनल्स प्रॉपर्टीज क्या लिख देंगे, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ओके, सो ओ ए गिवन है, ओ पी फाइंड हो गया. इट मीन्स पी ई इक्वल्स टू ओ पी प्लस ओ ई, दैट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. डायगनल पी ई फाइंड हो गया. नाउ डायगनल पी ई फाइंड करने के बाद डायगनल एच एल कैसे फाइंड करेंगे. इट इज गिवन दैट HL is 5 more than PE. It means HL given है 5 more than PE. It means HL equals to PE plus 5. HL equals to 8 plus 5 and that is equals to 13 सेंटीमीटर. It means ये पूरे डायगनल की वैल्यू आ गई, लेंथ आ गई 13 सेंटीमीटर. अब फुल डायगनल की वैल्यू 13 सेंटीमीटर आ गई लेंथ. सो हाफ HO फाइंड, OH फाइंड करना है. सो इसका हाफ है. सो half of HL that is equals to OH that is equals to 13.2 and when we divide 13 by 2 then we get our answer 6.5. So OH equals to 6.5. OE given है 4 सेंटीमीटर and OH पूछा है और ये है कि HL है 5 more than PE. So OE 4 सेंटीमीटर है तो OP भी 4 सेंटीमीटर होगा क्योंकि डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के. सो OP 4 सेंटीमीटर हो गया, OE 4 सेंटीमीटर गिवन, इट मीन्स P इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड HL इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर मोर देन PE दैट इज इक्वल्स टू 13. नाउ HL जब 13 है तो इट मीन्स OH 13 का आधा है, आधा ये आधा ये. सो हाफ हाफ होके पूरा हो जाएगा. सो हाफ ऑफ HL इक्वल्स टू OH दैट इज इक्वल्स टू 13.2 एंड आंसर है 6.2 सेंटीमीटर. Now we are going to start our exercise 13.2. First question of this exercise, given a parallelogram PQRS. PQRS is a parallelogram. Complete each statement. इस parallelogram को देखते हुए जो ये statements हैं इनको complete करना है. इट मीन्स क्या इसके इक्वल क्या होगा, इस एंगल के इक्वल कौन सा एंगल होगा. सो PS. सो फर्स्टली PS इसकी साइड है पैरेललोग्राम की. ये कौन सी साइड की इक्वल होगी, ऑपोजिट पैरेलल साइड. और इसकी ऑपोजिट पैरेलल साइड कौन सी है, RQ या QR.
ओके, नाउ एंगल पी क्यू एस, एंगल एस पी क्यू, ये पूरा एंगल है एस पी क्यू और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो विच एंगल इज ऑपोजिट ऑफ एंगल पी? एंगल आर इज ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल पी. इट मीन्स एंगल एस आर क्यू. नाउ ओ एस, OS, this is a half part of this diagonal SQ. So OS किसके इक्वल होगा? OQ. Measure of angle SPQ, SPQ and measure of angle PQR, PQR. इन दोनों एंगल्स के मेजर का एडिशन किसके इक्वल होगा? एडजेसेंट एंगल्स हैं. सो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम. सो देयर सम मस्ट बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्टली PS पूछा है तो PS इसकी एक साइड है. सो ये अपनी ऑपोजिट पैरेलल साइड के इक्वल होगी और PS की ऑपोजिट पैरेलल साइड है QR या RQ. नाउ एंगल SPQ, SPQ, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल R बिकॉज एंगल P एंड एंगल R opposite angles and opposite angles are equal in parallelogram. Now OS, this is half part of this diagonal SQ. So OS equals to OQ या Q. Measure of angle SPQ and measure of angle PQR. SPQ and PQR are adjacent angles, so their sum must be equals to 180 degree. Now our question number 2. ABCD is a parallelogram and angle A equals to 80 degree. Find other angles of a parallelogram. स्टूडेंट इस टाइप का एग्जाम्पल हम कर चुके हैं. मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये आप खुद करेंगे नोटबुक में. This is a parallelogram ABCD and angle A is given that 80 degree and we have to find all these angles. So firstly मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ. So angle A 80 degree है, it means angle A का opposite angle कौन सा है? Angle C. And we know that opposite angles are equal in parallelogram. So angle A equals to angle C, that is equals to 80 degree. And angle A and angle B are adjacent angles and adjacent angles are supplementary to each other in a parallelogram. So angle A and angle B का addition क्या होना चाहिए? Their sum must be equals to 180 degree. When angle A is equals to 80 degree, then angle B is equals to 180 minus 80 and that's equals to 110 degree. So angle B equals to 110. Angle B and angle D are opposite angles to each other. So angle D is also equals to angle B. It is equals to 180 degree. Okay students, as it is first example है, so आप ये अपनी नोटबुक में खुद करेंगे. Okay.